Hello friends, this is Enmesh and welcome to the Get Mantra. So in this video we are going to start with a new concept, that is the race problem. So in the race problem we solve by the two approach. The first approach is time comparison. Okay, the first approach is time comparison. So in time comparison, there is a track of 100 meter, okay, from here to here. So let's say the point A and this is the point B, right? uh, uh, or this is the 100-meter track. Let two persons C and D, right? So at here the C, okay, the C reached at the point B, okay, or finishes is 100 meter in time, okay, in time 30 seconds. And let D finishes this journey, okay, journey of 100 meter in 40 seconds. So here we can say that C on the race by 10 सेकंड, राइट. सो यहाँ पे एक दो पॉइंट है एंड बी, एंड ये ट्रैक पूरे 100 मीटर का है. और इस पूरे 100 मीटर को डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक सी है और एक डी है. तो सी टाइम ले रहा है 30 सेकंड एंड डी ले रहा है 40 सेकंड. तो हम लोग यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि सी जो है वह 10 सेकंड कम लिया, और वी कैन से दैट डी जो है वो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लिया टू कंप्लीट दिस 100 meter journey. Okay, so here we can say that the C on the race by 10 seconds, right? So this is the time comparison concept. Now we see here the distance comparison concept. Okay, the second one is distance comparison. Right, so let us say this is a track of 100 meter. Okay. So here it's 0 and here it's 100. Let the three person whose name is A, B and C. So let's the C is, let the A is here, okay, the A is here at 100 meter. Let B is here and B is at 90 meter, and let C is here and C is at 70 meter. So here we can say that, so here you can say that the B is, okay, 10 meter behind A, okay, or we can say that the A on the race by 10 meter, right? So we can say that A by 100 equal to B by 90. Okay, if we can say here the A on the race by 30 meter means A on the race by 30 meter by the C, this is the C. So we can here say that A by 100 means when the A reach to 100 meter, C is reached to only 70 meter, and that's why the A on the race, okay, by 30 meter with respect to C, right? So here we have seen the distance problem and we saw how we can tackle this problem. So there is a two approach, okay, the time approach, time comparison, as well as the distance comparison. So let us see the some examples.
Okay, let us see some examples. So here let me add the examples. Let me add this 5 example. In this video we are going to solve this 5 example. Okay, so let me add this all the 5 example here. Let us solve our first example of the J. Here is our first example. So in the first example it's saying in a 100-meter race A beat B by 20 meter and B beats C by 10 meter, right? Then by what distance A beat C? So here I'm going to solve this problem here from here. Okay, uh, so let me draw one and here line. Okay, so here it's given the in a 100-meter race means there is a track of 100 meter. So here to here, okay, this is 0 and this is 100. So in a 100-meter race A beat B by 20 meters means when A is at 100 meter, right, B will be at 80 meter. So that's why the A beat the B by 20 meters means when the A is at 100 meter, B will be at 20 meter. Now the B beats C by 10 meter means when the B will be, we have to understand here, when the B will be at 100 meter, then C will be at 90 meter. So we can say here that the B beats C by the 10 meter, right? So when the A is at 100 meter, B will be at 80 meter. So we can say A beat B by 20 meter. And when the B is at 100 meter, then C will be at 90 meter. Then we can say that the B beats C by 10 meter. Okay. Okay. Now, so when B will be equal to the 1 meter, then the B 1 मीटर पर आएगा, तब C कितने मीटर पर आएगा? C will be equal to the 90 divided by 100 मीटर. Okay, 90 divided by 100 मीटर. तो जब B 80 मीटर पर रहेगा, B जब 80 मीटर पर रहेगा उस समय C कहाँ रहेगा? जब B 80 मीटर पर रहेगा उस समय जो C रहेगा वो 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 80 मीटर पर रहेगा. 2 4 जा 8, 2 5 जा, and 5 1 8 at 72 मीटर. सो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जब B 80 मीटर पर रहेगा उस टाइम C जो है वो 72 मीटर पर रहेगा. मीन्स when A will be at 100 meter, B will be at 80 meter from the question, and when B will be at 80 meter, then C will be at 90 meter. This is also from the question. तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जब B 1 मीटर पर रहेगा, ओके, जब B 1 मीटर पर रहेगा उस समय C कितने मीटर पर रहेगा? C will be at 19 divided by 100 meter. So when B will be at 80 meter according to this, then C will be at 72 meter. So we can say that when A will be at 100 meter, okay, then C will be at 72 meter. Means A on the race by how many meter? By 18 meter by C. तो C के रिस्पेक्ट में ये 18 होगा ना, ये 28 होगा.
सी के रिस्पेक्ट में ये 28 मीटर से रेस जीत चुका है। कौन? ए। सो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि एक 100 मीटर रेस में ए बीट करता है बी को बाई 20 मीटर, मीन्स जब ए 100 पे रहेगा उस समय बी जो होगा वो 80 पे रहेगा, राइट। ठीक है। अगेन when when b beat c by the 10 मीटर मीन्स जब b जो होगा 100 पे रहेगा उस समय c जो होगा वो 90 पे रहेगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि b जो होता है बीट किया c को बाय द 10 मीटर। तो यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए कि जब b 1 मीटर पे रहेगा उस समय c कितने पे रहेगा, 90 डिवाइड बाई 100 मीटर पे रहेगा। देन जब b 80 मीटर पे रहेगा उस समय c कितने पे रहेगा, 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 80 72 मीटर पे रहेगा, राइट। सो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब a, यहाँ से ये हम लोग ये कह सकते हैं कि जब a 100 मीटर पे है उस टाइम b जो होता है वो 80 मीटर पे है एंड c जो होता है वो 72 मीटर पे है। मीन्स a जो होता है वो बीट करता है b को बाई 20 मीटर एंड a जो होता है बीट करता है c को बाई 28 मीटर। मीन्स a जो होता है वो c से 28 मीटर आ गया है, राइट। सो ये क्वेश्चन आई होप you can understand this question. Okay, now let's move to the our second question. This is our second question, right? So in a 300-meter race, a beat b by 22 meters or 6 seconds, then b time over the course. So first let me divide the screen for solving problem. Okay, so in a, it's given here the distance is here 0 and the distance is here 100. Sorry, it's 300 meter race, right? Distance is here 300. So in a 300-meter race, right, a beat b by 22 meters, means when a will be at 100 meters, when a will be at 300 meter, then b will be at 300 minus 22.5 meter. Then a beat b by the 22.5 meter और 6 सेकेंड, मीन्स a जो है मीन्स b जो है वो a से 6 सेकेंड ज़्यादा ले रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, राइट। मीन्स c जो होता है अब मीन्स b जो है a से 6 सेकेंड जितना टाइम, मान लीजिए कि टाइम t a ले रहा है 0 to 300 जाने के लिए, देन b जो है वह जो भी यहाँ पे है वो t plus 6 सेकेंड ले रहा है। ओके, so we can find here, right, 300 minus 22.5, 300 minus 22.5 will be equal to the 277.5, 277.5, right। तो ये 300 मीटर का ट्रैक है जहाँ पे b जो होता है वो 300 मीटर पे है, a जो होता है 300 मीटर पे एंड b जो है वो 277.5 मीटर पे है। और ए जो होता है 0 to 300 मान लीजिए जाने में a जो होता है वो टाइम t ले रहा है, देन b जो होता है वो टाइम t plus 6 ले रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो होता है 22.5 मीटर को कवर करने के लिए b जो हो रहा है, b जो ले रहा है और टाइम जो ले रहा है वो 6 सेकेंड एक्स्ट्रा ले रहा है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ b कितना हुआ, 22.5 डिवाइड बाई 6, 22.5 डिवाइड बाई 6। देन यहाँ पे वेलोसिटी निकल गया, तो हम लोग अब टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम ले रहा है। तो इस वेलोसिटी से ये जो होता है मीटर पर सेकंड है, इस वेलोसिटी से वह 300 मीटर कितने टाइम में कवर कर रहा है, 300 डिवाइड बाई 22.5 डिवाइड बाई 6, राइट। तो ये कितना हुआ, 300 डिवाइड बाई 22.5 इंटू 6,
and this will be equal to how much? Let me calculate this. 300 into 6 divided by 22.5, and this will be equal to the 80. So जो टाइम स्पेंड किया जा रहा है बी के द्वारा ऑन द ट्रैक ऑफ 300 मीटर विल बी इक्वल टू द 80 सेकेंड, राइट, विल बी इक्वल टू द 80 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन में दिया है कि एक 300 मीटर का ट्रैक है जिसमें ए बीट कर रहा है बी को बाई 22.5 मीटर और 6 सेकेंड, मीन्स कि अगर 6 सेकेंड और मिलता है, ओके, अगर 6 सेकेंड और मिलता है बी को तो ये बी 300 मीटर मतलब कि मतलब ये पूरा 300 मीटर पे ये क्रॉस कर देता है। मीन्स जब ए जो था वो 300 मीटर पे था उस समय बी कहाँ था, उसे 22.5 मीटर पीछे था, और अगर बी को 6 मोर सेकेंड मिल जाता तो ये क्रॉस मीन्स ये पहुँच जाता 300 मीटर पे। सो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है 22.5 मीटर, इसको कवर करेगा बी कितने टाइम में, 6 सेकेंड में, तभी तो वो 300 मीटर पे पहुँचेगा। ओके, then we can say that the velocity of b will be equal to 22.5 divided by 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो टाइम स्पेंड किया गया है बी के द्वारा ऑन द ट्रैक इज 300 डिवाइड बाई 22.5 divided by 6, that will be equal to the 80 seconds. So let's move to our next question. This is the third question of the day. So a truck is given the question, the truck जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, ट्रक जो है जो 10 मीटर लॉन्ग है, एंड ए कार जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, गो ऑन ए सिंगल लेन ब्रिज, ओके, गो ऑन ए सिंगल लेन ब्रिज, राइट, देयर मस्ट बी ए गैप ऑफ एट लीस्ट 20 मीटर आफ्टर ईच ट्रक, हर एक ट्रक के बाद कम से कम 20 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, एंड ए गैप ऑफ 15 मीटर आफ्टर ईच कार, हर एक कार के बाद 15 मीटर का गैप होना चाहिए, और ट्रक का लेंथ 10 मीटर है एंड कार का लेंथ 5 मीटर है। ट्रक एंड कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ट्रक एंड कार दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, एक आवर में 36 किलोमीटर, राइट। इफ़ द कार एंड द ट्रक गो अल्टरनेटिवली, अगर कार और ट्रक एक के बाद एक जा रहा है, मतलब पहले ले लेते हैं ट्रक जा रहा है फिर कार, या फिर पहले कार और ट्रक जा रहा है ऐसे, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन बी यूज द ब्रिज इन ए 1 आवर, देन 1 आवर में उस ब्रिज पे चलने वाली टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने होंगे। तो हम लोग लेट कर रहे हैं कि यह एक ब्रिज है, राइट, यह एक ब्रिज है, ठीक, यह एक ब्रिज है, और इस पे क्या है हम लोग देख लेते हैं। इस पे जो है सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक ट्रक ले लिए हम लोग, ये ट्रक ले लिए जो कि 10 मीटर का है। अब ट्रक के आगे हम लोग कितने डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा, 20 मीटर एटलीस्ट, तो 20 मीटर हम लोग यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिए 20 मीटर, और फिर हम लोग एक कार ले लिए क्योंकि ये अल्टरनेट जा रहा है, तो कार कितना हो गया 5 मीटर का, और इसके बाद हम लोग कितना डिस्टेंस छोड़े 15 मीटर, कम से कम यहाँ से हम लोग 15 मीटर छोड़ दिए, और इसके बाद फिर से क्या स्टार्ट होगा, इसके बाद फिर से एक ट्रक स्टार्ट होगा, यहाँ से ट्रक रहेगा, ये ट्रक फिर से 10 मीटर रहेगा, और फिर यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस छोड़ेंगे 20 मीटर का, और फिर से एक कार रहेगा 5 मीटर का, और फिर से हम लोग 15 मीटर का डिस्टेंस छोड़ेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो गाड़ी है वो दो गाड़ी मिलाकर कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये जो व्हीकल्स है ट्रक एंड द कार, ये मिला करके कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 10 + 20 दैट इज 30, 30 + 5 35 एंड + 15 50 मीटर। सो टू व्हीकल्स जो होता है, टू व्हीकल्स एवरी 50 मीटर, तो टू व्हीकल्स जो होता है वो मिल के 50 मीटर डिस्टेंस ले रहा है, राइट। तो हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल ऑन ए ब्रिज, ऑन दैट ब्रिज, ओके, ऑन दैट ब्रिज इन 1 आवर, हम लोग को 1 आवर में लेना है,
विल बी इक्वल टू द 2, क्योंकि 2 नंबर ऑफ व्हीकल है। ओके, 36 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है इस ट्रक का एज वेल एज कार का दोनों का, तो 36 किलोमीटर, किलोमीटर को हम लोग मीटर में लेंगे, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे टोटल जो दो व्हीकल मिलके 50 मीटर डिस्टेंस ले रहा है। ओके, तो 36 इंटू 1000 डिवाइड बाई 50, तो ये कितना हुआ 1440। ओके, 1440। तो 1 आवर में जो टोटल 1440 नंबर ऑफ व्हीकल्स इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। राइट, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये दिया है कि एक ट्रक 10 मीटर लॉन्ग है, एक कार 5 मीटर लॉन्ग है, और एक ट्रक के आफ्टर मिनिमम आपको 20 मीटर डिस्टेंस छोड़ना है, और एक कार के बाद मिनिमम आपको 50 मीटर, मतलब पहले आफ्टर ट्रक और कार के बाद दिया है कम से कम आपको 15 मीटर डिस्टेंस छोड़ना है। राइट, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रक एंड कार जो होता है वो अल्टरनेटिवली जा रहा है। राइट, तो what is the maximum number of vehicle that can be used by the bridge in an hour, and दो स्पीड जो है वो कार एंड ट्रक का दोनों का 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है भाई किसके द्वारा, दो व्हीकल को मिला के, दो व्हीकल, एक ये व्हीकल एक ट्रक और एक कार को मिला के टोटल 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो दो व्हीकल 50 मीटर डिस्टेंस ले रहा है। राइट, और ये जो व्हीकल्स है वो 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, मीन्स 1 आवर में 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए, और चूँकि दो व्हीकल्स मिलके 50 मीटर का डिस्टेंस ले रहा है, इसलिए हम लोग इसे 50 से डिवाइड कर दिए, और 2 व्हीकल्स के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, और ये हमको दे दिया टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द ब्रिज इन 1 आवर। राइट, तो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करें और दोबारा देखें। राइट, सो लेट्स मूव ऑन द आवर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस विल बी द आवर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। So let me divide the screen. Right, so it's given in a 100-meter race a run at 6 kilometer per hour. Okay, तो 100 मीटर रेस है, इन 100 मीटर रेस, तो ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर डिस्टेंस है। ओके, और ए रन कर रहा है विथ 6 किलोमीटर पर आवर। राइट, तो ए का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। ए रन कर रहा है विथ 6 किलोमीटर पर आवर, ए रन कर रहा है विथ 6 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ए गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर, मीन्स ए जो है वो बी को 4 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। मीन्स ये हुआ कि ए जो होता है जब 0 पे है उस समय बी जो होता है वो 4 मीटर पे है। राइट, एंड स्टिल बीट हिम बाई 12 सेकेंड, बाई 12 सेकेंड, और इसको बीट कर दे रहा है बाई 12 सेकेंड। मीन्स जब वो दोनों ए एंड बी ये 100 मीटर पे पहुंचते हैं तो बी को जो होता है वो 12 सेकेंड एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है कंपेयर टू ए टू go on the to cover the whole track, and this track will be of 96. Okay, because there is a distance of 100 meter. If we subtract this 4 meter, then this distance will be 96 meter, means 96 मीटर। राइट, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ए का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, एंड अगर ए बी को स्टार्ट देता है 4 मीटर को, देन उसके बाद बी जो होता है वो 12 सेकेंड से हार जा रहा है। मीन्स ए जो होता है वो बीट कर रहा है बी को बाय द 12 सेकेंड। राइट, बाय द 12 सेकेंड। सो ये हम लोग का डिस्टेंस हो गया 96 मीटर। राइट, सो जो टाइम जो ले रहा है ए के द्वारा, ओके, ए के द्वारा जो टाइम लिया गया है वह टी ए होगा, एंड टी ए विल बी द 100 मीटर का जो है, और इसका स्पीड हम लोग लेते हैं 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं मीटर पर सेकेंड से, तो इसको 5 डिवाइड बाई 18 करेंगे।
कितना जो टाइम ले रहा है, ए ले रहा है किस पे, ट्रैक पे। देन ये जो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हुआ, 6 3 एंड दिस इज 20, दिस इज 60 सेकेंड। सो ए के द्वारा पूरा 60 सेकेंड लिया जा रहा है इस ट्रैक पे। ओके, तो बी कितना लेगा, बी जो होगा वो 60 सेकेंड एंड प्लस 12 सेकेंड ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए जो कर रहा है बीट कर रहा है बी को बाय द 12 सेकेंड से, मीन्स जितना टाइम ए लिया उसका 12 सेकेंड ज़्यादा बी लेगा, राइट। तो टोटल टाइम टेकन बाय द बी, जो टोटल टाइम टेकन किया जा रहा है बी के द्वारा और 72 सेकेंड लिया जा रहा है टू कवर दिस 96 किलोमीटर। ओके, टू कवर दिस 96 किलोमीटर। ए जो है वह 60 सेकेंड में पूरा 100 मीटर कवर कर रहा है एंड बी जो है वह 72 सेकेंड में केवल 96 मीटर कवर कर रहा है। देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बी, देन स्पीड ऑफ बी विल बी, कितना डिस्टेंस कवर किया 96, कितना टाइम लिया 72, then what will be the speed, its speed will be equal to the 4/3 meter per second। ओके, जब भी रेस का प्रॉब्लम होगा या तो टाइम कंपेरिजन करेगा या फिर डिस्टेंस कंपेरिजन करेगा। तो इसमें बोला है कि 100 मीटर रेस में ए का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है एंड इफ़ ए जो होता है वो बी को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, मीन जब ए 0 पे है उस समय बी जो होता है वो 4 मीटर पे है। देन बी स्टिल इस रेस को हार जाता है बाय 12 सेकेंड, मतलब बी के पास अगर और 12 सेकेंड होता तो वो इस रेस में ए के साथ साथ मीन्स एंड ऑफ द ट्रैक पे पहुंचता, राइट। सो जितना जो टाइम ए ले रहा है, ए के द्वारा लिया गया टाइम जो है वो 100 मीटर का ये ट्रैक है डिवाइड बाई इसका स्पीड जो कि 6 इंटू 5/18, हम लोग यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर को। एंड देन टाइम लिया गया ए के द्वारा 60 सेकेंड, then time taken by the B will be equal to the 60 second plus 12 more second, right, then TB will be equal to the 72 second। Now the speed, or we can say the velocity of the B will be equal to the 96 because distance have to cover 96 meter by the B and in the 72 second, then the velocity of B will be 96 divided by 72, that will be equal to the 4/3 meter per second, right। So this was a easy question. Now let's move our next question. This will be the fifth question of the day, right? So A run 1, okay, 1 into 2/3 time fast as B. So let the speed of B will be equal to the, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो लेट द स्पीड ऑफ द बी, स्पीड ऑफ बी, हम लोग बी का स्पीड लिए v, ओके, v ले लिए। तो लेट्स यहाँ पे दिया ए रन 1 इंटू 2/3 टाइम फास्ट एज द v, देन ए का स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5/3 t, ओके, हो गया। इफ़ ए गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, अगर ए जो होता है बी को 80 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, मीन्स जब ए, ये एक ट्रैक है, मीन्स जब ए 0 पे होगा उस समय बी, मान लीजिए ए जब 0 पे होगा उस समय बी जो होगा वह 80 मीटर पे होगा, मीन्स ए जो होता है वो 80 मीटर का स्टार्ट दे रहा है बी को। देन हाउ फार द विनिंग पोस्ट टू बी, सो ये विनिंग पोस्ट मान लीजिए कहीं यहाँ पे है, तो ये विनिंग पोस्ट कितना दूर होना चाहिए, सो दैट द बी, ए एंड द बी माइट रीच द सेम टाइम। ओके, तो विनिंग पोस्ट कितना दूर होना चाहिए कि ए एंड बी दोनों सेम टाइम पे पहुँचे। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि ए का स्पीड जो होता है वो 5/3 टाइम्स बी का स्पीड का है, ओके, एंड ए जो होता है वो 80 मीटर स्टार्ट दे रहा है बी को, ओके। देन विनिंग पोस्ट कितनी दूर होना चाहिए कि ए एंड बी दोनों सेम टाइम पे वहाँ पे पहुँच पाए, राइट, ए एंड बी वहाँ पे दोनों सेम टाइम पे पहुँच पाए। सो यहाँ पे लेट कर लेंगे हम लोग कि ये डिस्टेंस जो होता है वो x है, ये डिस्टेंस जो होता है x है, राइट। सो
यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि दोनों जो होता है वह विनिंग पोस्ट है, जिसको कि हम लोग पी ले लेते हैं। तो दोनों जो होता है वो विनिंग पोस्ट पी पे सेम टाइम पे पहुंच रहा है, मीन्स जो टाइम टेकन किया गया है ए को पहुंचने के लिए पी पे, वही टाइम टेकन किया गया है बी को पहुंचने के लिए पी पे, राइट। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना कवर कर रहा है ये 80 मीटर तो कर रहा है, प्लस x मीटर और कर रहा है, राइट। और इसका स्पीड कितना है 5/3v इक्वल टू, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है x कर रहा है, एंड इसका स्पीड कितना है v। तो यहाँ से v से v गया, राइट। तो 80 प्लस x विल बी इक्वल टू 5/3x। तो यहाँ से हो गया 240 प्लस 3x will be equal to 5x, then 2x will be equal to the 240, right. Then x will be equal to the 120. Okay, x will be equal to the 120. Then this will be equal to the x will be equal to the 120. Then the total distance is equal to the 120 plus 80, and this will be equal to the 200. We can say that meter or kilometer because the unit is not given here, so our correct option will be A. So the winning post should be at 200 meter from A. Okay, winning post should be at 200 meter from A, such that the A and B both will be reached at the point P, that will be the winning post, okay, at the same time, right. So here we have solved this question also. So in this series, in this video, we have solved the 5 question, and out of the 5, 4 questions is related to the race problem, and one question, this question is asked in the gate, okay, it's asked in the gate, okay। तो ये गेट में पहले से पूछ लिया गया है, और 4 क्वेश्चन हम लोग जो होता है वो रेस प्रॉब्लम से सॉल्व किए हैं इसमें, राइट। तो इसके बाद एक और आएगा 5 क्वेश्चन का वीडियो, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन, जो कि रिमेनिंग प्रॉब्लम को इसमें हम लोग डील करेंगे उसमें। और ये टोटल मिलाकर 3 वीडियो हो गया, जिसको कि हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इसमें कवर किए हैं। और एक वीडियो और रहेगा, टोटल 4 वीडियो है जिसमें हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग वर्क एंड टाइम स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज the end of the today class, right? So thank you for listening. Thank you so much.